Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. So let us start today's session. Two statement forms are said to be logically equivalent if and only if they have identical truth values for each possible substitution of the statement for their statement variable. So logical equivalence of statements P and Q are denoted by writing P triple equivalence का symbol है triple lines equal to Q. Two statements are logically equivalent if and only if they have logically equivalent form when identical component statement variables are used to replace their identical component statement. So what does it mean? Simply mean क्या है? Logical equivalent आपको दिखाना है तो logical equivalent दो तरह से दिखाया जा सकता है, using logical equivalence laws or using the truth table. So if you have, for example, P and Q are two statements, see here, it is a truth table of P and Q, and this is a truth table for Q and P. So you can see here, the truth tables have identical entries, true, false, false, false. Here also, true, false, false, false. So when they are common entry, I can say that from this, P and Q is logically equivalent to Q and P. So logical equivalent using truth table अगर आपको दिखाना है तो what you have to write? You have to write their truth table and you have to show that the truth table have identical values. If they are matching, then it is logical equivalent. If they are not matching, they are not logically equivalent. Show that the following statements are logically equivalent. तो पहले first statement करते हैं and then we will see the second statement. So you will tell me what row should I make. First is obvious P, second is Q. What column? P का column क्या लिखेंगे? True. And Q false. What is Q column? True, false, true, TF. false. TF, TF. Okay. लिख दिया. What we want left hand side के लिए क्या चाहिए? P and Q and then negation of P and Q. So I will write first P and Q and then fourth column will be negation of P and Q. Okay. Is this clear? Okay. What is true and true? True. True. What is true and false? False. What is false and true? False. False. And what is the false and false? False. 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 So when P and Q is true कब होता है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स होगा. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए ट्रू है, बाकी सब जगह वो फॉल्स है. What is negation of this statement P and Q? ट्रू का निगेशन क्या होगा? फॉल्स. False. ट्रू. फॉल्स का निगेशन अगेन ट्रू and false का negation is true. So P and Q ये जो statement है that is the third column, उसका हमने negation लिया. What is the right hand side now? Right hand side में पहले calculate करना पड़ेगा negation P, then we have to calculate negation Q and finally we can calculate negation P or negation Q. ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर बड़ा हो जाएगा ये. What is negation of P? P का negation करो. First column is P, उसका negation क्या होगा? False. True का false, false. Then again false का it is true and then false का again it is true. Similarly negation of Q, second column का negation. Second column का negation क्या आएगा? True का negation is false.
false का negation is true, then again false and again true. अभी आपको और यूज करना है बीच में, ये जो दो कॉलम मिल रहे हैं दैट इज फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स कॉलम, उनके बीच में और लगाना है. तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? false, फॉल्स और ट्रू. और में क्या होता है? कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो रिजल्ट इज ट्रू. इसमें भी एक स्टेटमेंट ट्रू है इसीलिए रिजल्ट इज ट्रू. दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू. नाउ चेक द कॉलम्स. सी वी वांट दिस इज एलएचएस. एलएचएस में क्या एंट्रीज है देखो. फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. सिमिलरली आरएचएस में क्या एंट्रीज है देखो. फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. तो एलएचएस इज इक्वल टू आर. तो क्या है? सेम है. दिस टू कॉलम्स आर सेम. So they have same truth values, therefore we can say that same truth values. What we can say? This column and this column is equivalent. This implies that I will write down. This means that negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q. What about the second statement? Second statement भी कर लेते हैं. तो इसको थोड़ा नीचे लेते हैं so that let us do the second statement. Second statement क्या है? negation of P और Q. तो पहले क्या लेंगे? हमेशा पहले दो कॉलम इज P and Q. कॉपी डाउन द कॉलम्स. P का वैल्यूज क्या रहेगा? ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड देन लास्ट कॉलम इज फॉल्स फॉल्स. राइट. व्हाट इज नेक्स्ट कॉलम में? वी हैव वांट लेफ्ट हैंड साइड पहले कैलकुलेट करो. वी वांट पहले P और Q, then negation of P और Q. ठीक है. तो ये कैलकुलेट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो जाएगा. फिर ट्रू और ट्रू. ट्रू और फॉल्स क्या होता है? true, अगेन फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है और फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है. दोनों भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ही वो फॉल्स होगा, नहीं तो फॉल्स नहीं होगा. व्हाट इज निगेशन ऑफ P और Q? इसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स false, फॉल्स फॉल्स एंड लास्ट कॉलम में ट्रू. true, लेट अस कैलकुलेट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या होगा? negation P, negation Q, and finally you can write negation P or negation Q. ठीक है. व्हाट इज negation P? फर्स्ट कॉलम का negation क्या होगा? ट्रू का negation इज फॉल्स फॉल्स अगेन फॉल्स फॉल्स का negation इज ट्रू फॉल्स का negation इज ट्रू. negation ऑफ Q ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड लास्टली ट्रू. सेकेंड कॉलम का negation ले लिया. अभी बीच में क्या है? सॉरी, बीच में इज एंड. So it is not or, it is बीच में and. So false and false, we got false. False and true, what we got? False. बीच में and है ना. True and false, again false. And true and true, दोनों जगह ट्रू है तो आपका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा. So again compare this result. We got this as a LHS false 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 true. RHS क्या है? false 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 true. दोनों आइडेंटिकल है. If these two are identical,
these two columns are identical, therefore I can write that negation of P or Q is same as negation of P and negation of Q. These two are very famous laws. These two are famous laws and they are known as डी मॉर्गन्स लॉज. तो ये जो दो लॉज बताए गए हैं, इफ यू वांट टू negation of and, you will put negative sign to both statement and replace by or. तो यहाँ पे जो and है वो replace by or हो जाता है negation में. और जब और रहता है तो उसका negation क्या होगा? and होगा. और का negation होता है and का negation होता है or. Is this clear? ओके. Yes, तो sir. यहाँ पे उन्होंने वर्ड में दिया है द निगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द और स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज द निगेटेड. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज दिस निगेशन मीन्स? अगर आपके पास तीन स्टेटमेंट है, से P and Q and R, what does this law says? negation of and statement, ये पूरा and statement है, तो logically equivalent to what? और statement. तो बीच में क्या आएंगे? ये दोनों के and का क्या हो जाएगा? और बन जाएगा. और each statement P Q R, each statement का आपको negation लेना पड़ेगा. That is your first law. Similarly, negation of और statement, अगर और स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन क्या आएगा? एंड स्टेटमेंट आएगा. और हर एक कंपोनेंट का जो निगेशन है वो लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, निगेशन ऑफ P और Q और R is same as negation P and negation Q and negation R. तो एंड का और बन जाएगा, और का एंड बन जाएगा. दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ. तो ये कंसेप्ट क्लियर है डी मॉर्गन्स लॉ का? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ये हमने पहले ही किया था, एक्सक्लूसिव और का जो ट्रूथ टेबल बनाया था. तो लेट अस प्रूव दिस. अभी एक एग्जांपल ऐसा भी देख लेते हैं, लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट. आपको पता है व्हाट इज निगेशन ऑफ P एंड Q? क्या आएगा निगेशन? निगेशन P और निगेशन Q. तो दोनों के बीच में एंड डाला तो वो Q इक्विवेलेंट नहीं है, वो देखते हैं अभी. टेल मी व्हाट आर द कॉलम हेड्स. फर्स्ट कॉलम क्या होगा? P होगा. सेकंड कॉलम क्या होगा? Q होगा. व्हाट इज द थर्ड कॉलम? लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या कॉलम करना पड़ेगा? डायरेक्टली हमको P. निगेशन मिल सकता है क्या? निगेशन ऑफ P एंड Q डायरेक्टली मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना. तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? P एंड Q. देन हम लोग इस कॉलम का निगेशन ले सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q. ओके. तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? सिर्फ P एंड Q कैलकुलेट किया एंड देन वी कैन कैलकुलेट द निगेशन. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? वी वांट निगेशन P, देन वी वांट निगेशन Q, और फिर उनके बीच में एंड डाल सकते हैं, निगेशन P एंड निगेशन Q. ओके, ठीक है. लेट अस कैलकुलेट दिस. व्हाट इज P का टेबल क्या आएगा? पहला True, स्टेटमेंट true. जो होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. अगर 3 स्टेटमेंट है तो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स. ओके. 4 स्टेटमेंट है तो 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन योर वेरिएबल. अगर P Q R होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? T T T T देन फॉल्स 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 फॉल्स. ओके. व्हाट इज Q? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. हमेशा ना ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे ना तो अच्छा रहता है. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. लास्ट स्टेटमेंट का हमेशा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे लिखते जाने का. सेकंड लास्ट स्टेटमेंट में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में 4 ट्रू 4 फॉल्स 4 ट्रू 4 फॉल्स. ऐसे ऐसे यू कैन गो ऑनवर्ड. व्हाट इज
एंड में कब ट्रू होता है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, P is true, Q is true, then and का वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज द एंड वैल्यू इज फॉल्स। एंड का टेबल आपको याद करना है तो क्या करना है, जब दोनों ट्रू है तो ही ट्रू है, बाकी सब जगह फॉल्स है। और का टेबल में क्या है, व्हेन दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। इट इज FFFT एंड के लिए TFFF। ओके, व्हाट इज निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट? ट्रू का निगेशन इज फॉल्स, फॉल्स का निगेशन इज ट्रू, फॉल्स का निगेशन इज ट्रू, फॉल्स का निगेशन इज ट्रू। अगेन, व्हाट इज निगेशन ऑफ P? It is false, false, true, true. What is negation of Q? False, true, false, true. अगर मैं कहीं गड़बड़ किया तो आपको बताना है। एंड इन दोनों के बीच में एंड लगा है, फॉल्स एंड फॉल्स, क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, अगेन फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, अगेन क्या होगा? फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, वैल्यू विल बी ट्रू, राइट। जब एंड होता है तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होगा, बाकी के जगह पे फॉल्स होगा। तो लेट अस कैलकुलेट, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे T है और यहाँ पे T है, तो ये तो करेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, so these two are not equivalent. These two are not equivalent. Why it is not equivalent? We want this to be identical, so I can write not identical truth values. तो आपको एक भी अगर नॉन आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यू मिला तो आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट आइडेंटिकल। दिस टू स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होता है? सबके सब स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिकल वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ये मिला, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड दिस इज योर RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS, LHS एंड RHS में हर एक का जो वैल्यू रहेगा वो मैच होना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू मिसमैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो मिसमैच है, तो एक भी वैल्यू अगर मिसमैच हुआ तो आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, यू विल गेट नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो आई कैन राइट दैट negation of P and Q is not logically equivalent to the, what is the second statement? Negation of P and negation of Q. So understood this? When you can say that the statements are not logically equivalent? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, एक sir. भी Yes, यहाँ sir. पे तो दो मिला मिसमैच, बट अगर एक भी मिसमैच मिला, बाकी सब मैच है, मतलब 8 रो है, बाकी 7 रो मैच है, पर सिर्फ एक ही मिसमैच है, तो भी हम बोलेंगे कि इट इज नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है हर जगह वो सेम होना चाहिए। जितना भी इंट्रीज मिलेगा LHS का, जितना भी इंट्रीज RHS का मिलेगा, वो सब मैच होना चाहिए, तो ही हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे। अदरवाइज हम बोलेंगे कि इट इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। Now, first I will write the De Morgan's law over the top. What are the De Morgan's law? Tell me. What is negation of P and Q? And what is the negation of P or Q? दोनों का मुझे जवाब दो। What is negation of P Negation and P, हाँ, negation P or negation Q. that is the first. What is second? Negation P and negation Q. Okay. So first statement identify करो. It is which form है? कौन सा form है? Hal is math major and Hal's sister is computer science major.
What is this form? आपको इन सब का निगेशन लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है? Is it of the form P and Q? If I take this as P and this half sister is computer major is as Q and बीच में क्या है? And है. So it is of the form P and Q. Yes or no? ओरिजिनल स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है? P and Q. अभी इसका निगेशन लिखना है. कैसे लिखोगे? P and Q का निगेशन क्या होता है? बाय फर्स्ट लॉ, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. कैसे लिखोगे यहाँ पे? Hal is not a math major. तो निगेशन P लिख दिया. बीच में एंड है, उसका क्या बन जाएगा? और बन जाएगा. और सेकेंड का निगेशन क्या है? हाल सिस्टर is not computer science major. कंप्यूटर ये हटा देते तो जरा ज्यादा बड़ा मिलेगा. साइंस मेजर. ओके, कब तक सेकेंड का सोचो. अगेन कौन सा फॉर्म है? I can take this as P, this as Q. Again it is in the same form. Now you going to tell me क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 26 का आंसर क्या लिखूंगा? This is 25. What will be the answer? Sam is not an orange belt or Katie is not a red belt. Sam is not an orange belt और तो यहाँ पे एंड का क्या बन गया? और बन गया. Kate is not a red belt. Correct. What about 27? Is this form? पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो. बीच में क्या है? और है. Or तो P और Q. P और Q का निगेशन क्या होता है? negation P and negation Q. So what I can do? The connector is not loose. I can also write this connection is tight, loose. और के जगह पे क्या आएगा? And the machine is unplugged के जगह पे क्या आएगा? Machine is plugged. Unplugged का opposite is plugged. Machine is plugged. What about 28? The train is late or my watch is fast. The train is late or my watch is fast. What is the negation? The train is not late and my watch is not fast. Let us write in the very good language. So I will write that the train is on time.
लेट का अपोजिट इज ऑन टाइम एंड सिंस और है उसके बीच में एंड लिखेंगे. माई वॉच इज फास्ट का अपोजिट क्या होगा? Slow. तो हमेशा इंग्लिश स्टेटमेंट का जब ट्रांसलेशन करते हो तब ये ध्यान रखो कि उसका अपोजिट वर्ड देख सकते हो क्या. अगर अपोजिट वर्ड या अपोजिट फ्रेज आप लिख सकते हो तो वो लिखना चाहिए. अगर नहीं लिख सकते तो नॉट यूज करना चाहिए. ओके, so do take care of this. What about 29? 29 का क्या लिख सकते हो आप? The computer program has a logical error and sorry, in the first 10 lines. So this is your first statement up to here. बीच में और है, it is being run on with an incomplete data set. This is your second statement. How you will form the first statement का negation? The computer program has logical error in the first 10 lines. उसका negation क्या लिखोगे आप? This computer program, I will write in short. You will write complete the statement. This computer program does not have has का हमने क्या किया? Does not have logical error in first 10 lines sorry first 10 lines और की जगह पे क्या आएगा? एंड आएगा निगेशन में. इट इज बीइंग रन विद द इनकम्प्लीट डाटा सेट. उसका निगेशन क्या होगा? कंप्लीट डाटा सेट. इनकम्प्लीट का निगेशन इज कंप्लीट एंड it is being run with complete data set. It is being run with complete data set. Incomplete का हमने negation लिया, complete data set. What about 30? यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये पूरा भर गया है. यहाँ पे 30 का क्या लिखूंगा मैं? The dollar is all time high and the stock market is all at a record low. इसका opposite anyone? बीच में क्या है? एंड है. एंड सो और होएगा सर वो. एंड का और होगा. हाई का क्या अपोजिट होता है? लो. लो. So I will write the dollar is at all time low or what is the negation of the second statement? The stock market is at the record low. So record low होगा तो record उसका अपोजिट क्या होगा? record high. और the market is at record high. उल्टा किया, राइट?
So this is negation complete. Okay. Now comes to the next part of De Morgan's type. ये part 32, 33, 35. What about 32 statement? We want to write the negation of -2 less than x less than 7. इसको कैसे लिख सकते हैं? -2 less than x and x is less than 7. करेक्ट. अभी निगेशन लिखो, क्या आएगा निगेशन इसका? -2 लेस देन x. निगेशन क्या होता है? Anyone? कंफ्यूजन हो रहा है? लेट अस राइट दैट. -2 greater than x. यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं पे तो 7 है. What does this set represent? This set represent like this: -2 to 7, not -2 and not 7. This is the pictorial. तो उसका अपोजिट लेना है तो आपको रेड साइड लेना पड़ेगा, दैट इज दिस साइड जो रेड में मार्क किया है और जो रेड में मार्क यहाँ पे किया है. सिंस यहाँ पे हॉलो सर्कल था ओरिजिनली, तो रेड में जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा? डार्क सर्कल बनेगा या फील्ड वाला सर्कल बनेगा. सिमिलरली 7 के यहाँ पे हॉलो सर्कल था इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डार्क सर्कल बनेगा. So what we can write the negation -2 less than x. I will write the negation as x is greater than or equal to -2. Okay. Sorry, मेरा मिस्टेक हुआ. Let us write again. I will write -2 is greater than or equal to x. एंड के जगह का निगेशन होगा और x इज ग्रेटर देन 7. तो उसके लिए क्या निगेशन होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. तो यहाँ पे जहां पे भी आपका इक्वल टू साइन नहीं कंसीडर किया जाता है तो उसके निगेशन में इक्वल टू साइन आता है, इक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. इनइक्वालिटी जो है लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा. ओके. तो अगेन हमने कौन सा लॉ यूज किया? डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया. सो इट इज अ यूनियन ऑफ दिस टू सेट. और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन. ओके. अभी सिमिलरली 33 ट्राई करो, आप खुद बताओ मुझे क्या निगेशन आएगा. व्हाट इज द निगेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं? -10 लेस देन x एंड x is less than 2. टेल मी द निगेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन क्या आएगा? सॉरी ये 33 है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन? इसका निगेशन क्या आएगा? -10 एज इट इज लिखो, x एज इट इज लिखो. ये इक्वालिटी रिवर्स करो. सिंस इक्वालिटी इज नॉट देयर, वी विल इंक्लूड द इक्वालिटी ओवर हियर. एंड का निगेशन क्या हो जाएगा? और x लेस देन 2. सो x लिखा, 2 लिखा, रिवर्स द इनइक्वालिटी एंड एड इक्वालिटी साइन. यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाएगा. व्हाट अबाउट 34? आप बोलो. डायरेक्टली दिया है x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 5. व्हाट इज x लेस देन 2 का आएगा? X greater than equals to 2. तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे निगेशन में इक्वालिटी आएगा. और का निगेशन क्या होगा? एंड होगा. अगेन x and 5. What is the sign between them? Less than or greater than? इसका साइन का रिवर्स साइन, दैट इज if x is greater than 5, I can write x is less than 5 and I will include a equality because original question में equality नहीं है.
अभी 35 क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में इक्वालिटी है तो उसका निगेशन आएगा इक्वालिटी चली जाएगी, दैट इज लेस देन का रिवर्स क्या होता है? ग्रेटर देन -1। और का निगेशन क्या होगा? एंड होगा। एंड x लेस देन 1 है तो उसका निगेशन क्या होगा? x ग्रेटर देन 1 है तो निगेशन होगा x लेस देन 1। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो जहां पे आप देखो यहाँ पे इक्वालिटी इंक्लूडेड थी, यहाँ पे इक्वालिटी हमने इंक्लूड नहीं की। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी इंक्लूड की। तो दिस इज हाउ यू शुड डू। ओके, अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड डू इट अकॉर्डिंगली। क्या था? लेस देन तो ग्रेटर देन, ठीक है। 36 आप बताओ। पहले तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा एंड और में। कौन कौन सा दोनों इक्वालिटी दिया है? 1 ग्रेटर देन x एंड, और क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। टेल मी द निगेशन नाउ। राइट डाउन द निगेशन। क्या आएगा इसका निगेशन? फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन बताओ। 1 ग्रेटर देन x, इट विल बी निगेशन क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन इंक्लूड करना है। यहाँ पे इक्वालिटी साइन है तो इक्वालिटी साइन इंक्लूड नहीं करना है। एंड का निगेशन क्या आएगा? और आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो स्ट्रिक्टली लेस देन देन हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस इक्वालिटी का कैसे निगेशन लिखना है? अगेन आप डायग्राम से भी कर सकते हो। ये जो डायग्राम है कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ओरिजिनल सेट क्या है? यहाँ पे आपका -3 है, देन 0 है और यहाँ पे 1 है। तो फर्स्ट क्या है? 1 से बड़ा है। x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 कौन से साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो यहाँ पे -3 से लेके 3 तक हमको ओरिजिनल सेट दिया है। -3 को हमको इंक्लूड करके दिया है और x का जो 1 है वो इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा हॉलो सर्कल। जब हम इसका निगेशन लिखेंगे तो वो ग्रीन में ड्रॉ करता हूं। व्हाट वी वांट, यहाँ पे इंक्लूडेड है तो इसका इंक्लूडेड चला जाएगा। तो -3 पे हॉलो सर्कल आएगा। यहाँ पे हॉलो सर्कल है तो उसका क्या हो जाएगा? 1 पे क्या हो जाएगा? भरा हुआ सर्कल आएगा, दैट इज फिल्ड सर्कल। देन 1 के लेफ्ट हैंड साइड का इंक्लूड किया तो यहाँ पे 1 के राइट हैंड साइड का इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 के राइट हैंड साइड पे इंक्लूड किया है तो यहाँ पे 3 के लेफ्ट हैंड साइड का इंक्लूड करना पड़ेगा। सो अंडरस्टूड दिस। इसका निगेशन क्या होगा? ग्रीन लाइन। ओके, इज दिस क्लियर पिक्टोरियली? लेट अस राइट डाउन Yes. 37। 37 का क्या आएगा? आप मुझे बताओ। फर्स्ट क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन x, बीच में एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। व्हाट इज द निगेशन नाउ? फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन क्या आएगा? साइन को रिवर्स करो, इक्वालिटी नहीं है इसलिए इक्वालिटी ऐड। एंड का निगेशन करो और यहाँ पे क्या आएगा? x लेस देन और इक्वल टू 7 तो x एंड -7 ऐसे ही लिखना है और इक्वालिटी रिवर्स करना है। सिंस यहाँ पे इक्वालिटी दिया हुआ है, इक्वालिटी कंसीडर किया हुआ, इसलिए इक्वालिटी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, so this is how you will use De Morgan's law to write the negation of inequalities. Understood this? Yes sir. or no? Yes, Okay, sir. let's move on ahead.
Okay. There are two special statements. One is called tautology, other is called contradiction. Okay. The tautology is a statement which is always true, regardless of truth values of individual statement. So for example, if I say earth is a sphere, it is always true. और I will say sun rise in the east. तो मैं इंडिया में हूँ, बांग्लादेश में हूँ, कहीं पे भी हूँ, everywhere sun will rise in east and will set in west. So जो स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी. ओके. और जो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन. टेल मी द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. Let me give you one example, you will give me one more. The square of every real number is negative. Is this a contradiction? No. किसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? Yes, it is contradiction. It is always a contradiction. किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं देगा. रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद दे सकता है नेगेटिव, बट रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा. ओके. और कोई एग्जांपल दे सकता है? कॉन्ट्राडिक्शन, फॉल्स स्टेटमेंट्स देख बनाओ कोई तो. जैसा मैंने बताया कि x इज अ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. यस, कॉन्ट्राडिक्शन है. कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लो, आपको कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलेगा. वो वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करता है. ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाओ मैथमेटिक्स में. बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ. Let me give you one more example. X square plus x plus 1 equal to 0 has a solution in real number. What is the solution? Tell me. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा? It is of the form ax square plus bx plus c. इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला का क्या दिया जाता है? What is the equation का सॉल्यूशन? माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac upon 2a. Substitute and give me the solution of this two number. क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? What is b square minus 4ac here? Anyone? First, ये फटाफट आना चाहिए. What is b square minus 4ac? इसका वैल्यू बताओ, बाकी सबका छोड़ दो, बाकी फॉर्मूला में मत डालो, बाकी सिर्फ नाम के लिए. तो b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसमें, इस टाइप के इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा वैल्यू? a क्या है, b क्या है, c क्या है? सब 1 है. -3 अंडर -3 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या आप? नो. नहीं. No. It has a solution. -3 I can write it as 3 times I, but that solution will go to the complex number, not in the real number. तो इसके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे, रियल नंबर में नहीं मिलेंगे. इसीलिए ये भी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है. तो टोटोलॉजी क्या होता है? जो हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगा उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी, और जो हमेशा फॉल्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन.
Generally, this tautology is denoted by symbol small t and contradiction is denoted by symbol small c. और अगर आपको इनका ट्रूथ टेबल लिखना है तो ट्री का हमेशा ट्रूथ टेबल आता है ट्रू ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन का हमेशा ट्रूथ टेबल का वैल्यू आता है फॉल्स फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ओके, समझा ये? यस और नो? टोटोलॉजी क्या है? ऑल टाइम ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ऑल टाइम फॉल्स। फॉल्स। तो हमको ये दिखाना है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया है, कोई भी स्टेटमेंट के लिए P और negation of P is always a tautology and P and negation P is always a contradiction. तो उन्होंने टेबल बनाया, व्हाट इज P, T एंड फॉल्स, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, P एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए उसका दो ही वैल्यूज आएगा, आइदर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। निगेशन P का वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स एंड ट्रू। तो अगर बीच में और लगाया, ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉलम है, all the values are true, therefore this is called as P or negation P, I can write is equivalent to P or negation P is equivalent to tautology. What about P and negation P? True and false, बीच में एंड लगा है, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू में, फॉल्स एंड ट्रू में भी फॉल्स होगा, क्योंकि एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों वेरिएबल ट्रू होते हैं तो ही एंड ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स होगा। So we can write this as it is always a false. All the values are F, so we can say P and negation P is always a contradiction. So ये जो third column है is tautology, fourth column is contradiction. So I can write P and negation of P is equivalent to contradiction C. Okay, is this clear? ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Okay. तो इसको हम आइडेंटिटीज की तरह यूज करेंगे। हम लोग अभी ये जो इक्विवेलेंस प्रूव कर रहे हैं उनको आइडेंटिटीज की तरह यूज करेंगे नेक्स्ट में। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो टू का, यहाँ पे उन्होंने, मैं जो बोल रहा था, जो टोटोलॉजी होता है उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? ट्रू ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन का ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? फॉल्स फॉल्स। ओके, सो हमको दिखाना है P and 2 is equivalent to P and P and contradiction is equivalent to C. So what is P का लिखा? True false. Tautology is always true, therefore TT. P and T, true and true, true, false and true, false. So P and T का जो ट्रूथ वैल्यू है वो मैच कौन से कॉलम से हो रहा है? P के कॉलम से हो रहा है। देखो P का कॉलम इज ट्रू फॉल्स, P and T का कॉलम भी अल्सो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो ये दो मैच कर रहा है, सो आई कैन राइट P and T इज इक्वल टू P। सिमिलरली अगर P and C किया, P and C किया तो क्या मिलेगा मुझे? ऑलवेज फॉल्स मिलेगा। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स बीच में एंड डाला, P and C, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स बीच में एंड डाला तो फॉल्स आएगा। तो P and C का कॉलम मैच हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे P and C is equal to C. So और दो लॉ मिल गए कॉन्ट्राडिक्शन एंड टोटोलॉजी के, दैट इज P and T is equivalent to P and P and C is equivalent to C. ये सेट थ्योरी के साथ कंपेयर करो बच्चा। मैं अभी ना ये सब सेट थ्योरी के साथ कंपेयर करता हूँ। ट्रू का मतलब होता है, टोटोलॉजी का मतलब सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट होता है, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब सेट थ्योरी में एम्प्टी सेट होता है। तो कोई भी सेट के साथ उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, निगेशन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर उस स्टेटमेंट के साथ आप उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। So this two statement is comparative with these two statement in the set theory. Okay. Similarly यहाँ पे देखो, ट्रू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। तो अगर मैंने किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया विद द
universal set, I will get the same set back, that is A. अगर मैंने किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया with empty set, I will get an empty set. So this is the meaning in the set theory. The same logical statement you can compare with the set theoretical properties. Okay? तो ये हो गया. अभी इसमें से जितना होता है आज के लेक्चर में उतना करेंगे, बाकी का बाद में. बाकी का आप होमवर्क भी कर सकते हो. Okay? So let us prove this first thing. What we want, first P then Q. दो ही वेरिएबल इंक्लूडेड है. अपने को और क्या लगेगा? निगेशन P लगेगा. अपने को और क्या लगेगा? निगेशन Q लगेगा. तो ये चार का वैल्यू फटाफट लिख देते हैं. दिस इज ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. Q का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. निगेशन P, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू. True. निगेशन Q, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू. ये क्लियर है क्या यहाँ तक? इज दिस 4 कॉलम Yes, sir. क्लियर? ओके, लेट मी क्लियर. Yes. अभी अपने को क्या चाहिए? P एंड Q. तो पहला ब्रैकेट पहले कैलकुलेट कर. तो P एंड Q का ब्रैकेट क्या आएगा? टेल मी द ब्रैकेट. ट्रू एंड ट्रू, True. ट्रू एंड फॉल्स, False. फॉल्स एंड ट्रू, True. फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू. False. हाँ, और लास्ट में फॉल्स एंड फॉल्स, False. फॉल्स. नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया P एंड Q हो गया. अभी यहाँ पे क्या है? मुझे क्या चाहिए? P एंड निगेशन Q. तो आई विल फर्स्ट फाइंड P एंड निगेशन Q. P का कॉलम कौन सा है? दैट मीन्स दिस कॉलम. एंड Q का, निगेशन Q का कॉलम क्या है? दिस कॉलम, फोर्थ कॉलम. इनके बीच में एंड लगाना है. तो पहला एंट्री क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. इनके बीच में एंड लगा है. False. ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स. देन False. ट्रू एंड ट्रू, दोनों ट्रू है. दोनों ट्रू है तो True. एंड का वैल्यू ट्रू. यहाँ पे दोनों फॉल्स है. P भी फॉल्स है, निगेशन Q भी फॉल्स है. क्या आएगा वैल्यू? False. फॉल्स. False. और लास्ट में भी दोनों फॉल्स है. सॉरी, एक फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है. तो क्या आएगा? False. False. फॉल्स. तो ये मिल गया. अभी अपने को इसके साथ क्या करना है? ये जो स्टेटमेंट लाया उसके साथ आपको निगेशन P को जोड़ना है. और किससे जोड़ना है? और से जोड़ना है. मतलब ये वाला कॉलम अभी हम लोग को इसके साथ मैच करना है विद द सिंबल और. इन दोनों के बीच में और लगाना है. दैट इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज सिक्स्थ कॉलम. थर्ड कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम के बीच में आपको क्या लगाना है? और लगाना है. ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे निगेशन P और P एंड निगेशन Q. ये कैसे आएगा अभी बताओ मुझे. फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स आएगा. False. False. फॉल्स और ट्रू क्या आएगा? True. ट्रू आएगा. True. देन ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ट्रू आएगा. False. और है बीच में, और है, और है बीच में, और है. तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ट्रू है. ट्रू और फॉल्स. True. और तो हमेशा याद रखो, आप ना एक चीज याद रखो, ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, सॉरी ट्रू. ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स और वाइस वर्सा. दिस इज सेम एज फॉल्स और ट्रू. दिस इज सेम एज फॉल्स एंड ट्रू. अभी क्या बचेगा? अभी बचेगा दोनों जब ट्रू है. सो ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. सिमिलरली ट्रू और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स. तो दोनों जब आइडेंटिकल है तो वैल्यू आइडेंटिकल ही आता है, आइदर वो एंड में हो और में हो. बट एंड और में डिफरेंस क्या है? एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो एंड का वैल्यू फॉल्स होता है. अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो एंड का वैल्यू फॉल्स होता है.
और एक भी वैल्यू ट्रू है तो और का वैल्यू ट्रू होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखो व्हेन यू राइट दिस ट्रूथ टेबल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, पूरा स्टेटमेंट। मतलब पूरा स्टेटमेंट मतलब क्या है, मुझे ये वाला जो स्टेटमेंट है और ये वाला जो स्टेटमेंट है उनके बीच में क्या लगाना है, और लगाना है। दैट इज आई विल राइट P एंड Q, और ये जो स्टेटमेंट मिला दैट इज निगेशन P और P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये दो स्टेटमेंट अभी कंसिडर करना है, ये वाला और ये वाला, और बीच में क्या आएगा, और आएगा। कैलकुलेट करो, ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा, ट्रू, false, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू, ट्रू। ट्रू, तो एवरी वैल्यू इज द ट्रू, therefore 40 is the tautology। 40 we can write this, वो पूरा लिखो आप यहाँ पे, is tautology। समझा कैसे करने का? यू हैव टू Yes, sir. राइट द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और उसको ब्रेक ब्रेक करके लिखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर कट वैल्यू मिले। ओके, तो लेट अस स्टॉप हियर। yes, प्लीज लॉग इन, जिन्होंने लॉग इन नहीं किया आज के आज कर लो। अगर मैंने वो जो नंबर सेंड किया ग्रुप में, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको सर को कांटेक्ट करो, मैसेज कर को। और जिनके पास, जिनका नाम वो लिस्ट में नहीं है, 41 आर देयर इन द लिस्ट, तो जिसका नाम नहीं है मुझे पर्सनली मैसेज करो। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, yes, sir. Thank you. Thank you, sir. बाय एवरीवन।